बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students, we start our class with the name of Allah who is most beneficent and ever merciful. Welcome to all students and parents in our third video class of revision second semester final term content. In the previous video class we had completed the review or the revision of geography unit number 1, 2, 3 and 4. Now unit number 5. Now it's time for the revision of unit number 7, and the name of unit number 7 is advanced mapping technique. We had covered this chapter in our online classes. Now I'm going to give you a short brief review of this unit. The name of unit again is advanced mapping technique. In this unit we had discussed about what is map, how many types of maps are there, what are the types of thematic map, what type of data does thematic map shows, how does the different thematic maps shows the different data. Alright, and in the second part of this unit we had discussed some advanced mapping techniques, in which we had discussed about active remote sensing techniques and passive remote sensing techniques as well as their application in mapping. Alright, let's start with map. What is map? A map is a symbolic representation of a data or information, selected characteristics of any particular place on a piece of paper or on a visual screen. That is called a map. Map क्या है? किसी भी एरिया के geographical features के डेटा को represent करना in the form of symbols on a piece of paper or on a screen, या कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो कर दिया जाए या फिर किसी piece of paper पर different symbols को use करते हुए हम different features of a place को अगर show करें, that will be called the map. There are 4 symbols of map. Number 1 key or legends, and number 2 grid lines, number 3 compass and number 4 scaling. राइट कि आपके पास मैप पे क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले इसकी की मौजूद होगी, फिर जो ग्रिड लाइंस होती है जिसमें आप जो है ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड की डायरेक्शंस को देख रहे होते हैं. इसके अलावा जो है उस पर कुछ जो है वो डायरेक्शंस दी हुई होती है, कंपास सेट किया हुआ होता है और उसका स्केल होता है जिससे आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप. नाउ व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ मैप कैन शो. मैप कितनी तरह का डेटा शो कर सकता है. मैप जो इंफॉर्मेशन और डेटा शो करता है वो 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा शोज क्वालिटी. व्हाट डज इट शोज? इट शोज क्वालिटी ऑफ अ फीचर. एंड क्वांटिटेटिव डेटा शोज amount or quantity. It shows amount or quantity of a feature. Right? This is the difference between qualitative data and quantitative data that are shown by different maps. In your book, in the introduction of this chapter, there are 4 maps discussed. The first one is physical map. The second one is political map, the third one is relief map, and the fourth one is thematic map. So what are the physical maps? Physical maps are the maps that shows the physical feature of any particular place. किसी भी particular place पर मौजूद physical features like rivers, mountains, valleys, hills, oceans, seas, all these are the physical features present on the land. So a map that shows these physical features, they are called physical maps. The second one is the political map. What is political map? A map that shows boundaries between the countries, that shows capital and major cities of a countries, important roads,
and airports. So these type of map are called political map. The third one map is a relief map. What are the relief maps? Relief maps are those maps that shows elevation of a land. ज़मीन के ऊपर जो एलिवेटेड फीचर्स मौजूद हैं, ऊंचे और या नीचे फीचर्स मौजूद है, लाइक माउंटेन्स एंड द डेप्थ ऑफ द सी और ओशन, दीज आर शोन बाय द relief map. All right, the fourth one is a thematic map that is discussed in detail in your book. What are thematic maps? Thematic maps are the map that shows the theme of or portray the characteristics or feature of any particular place. That maps are called relief map. What does relief map represent? Relief map represents a theme or portray the geographic. What does thematic map represents? Thematic map represents the theme or portray the geographical feature of any particular place. There are four types of thematic map: dot map, choropleth map, isopleth map and proportional symbol map. What are dot maps? Dot maps are the map that shows quantitative data. Quantitative data in the form of dots. जो dots के form में data show करे और quantitative data show करे, that maps are called dot maps. Choropleth maps shows both quantitative and क्वालिटेटिव डेटा, दोनों तरह का डेटा ये शो करते हैं. और ये शो करते हैं डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स, या तो डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में डेटा शो करेंगे या फिर शेडिंग की फॉर्म में. राइट. द थर्ड वन इज आइसोप्लेथ मैप. दे शोज क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा बाय कॉन्टोर लाइंस. कॉन्टोर लाइंस के जरिए ये डेटा शो करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा शो करते हैं. एंड लास्ट वन इज प्रोपोर्शनल सिंबल मैप्स. प्रोपोर्शनल सिंबल मैप्स ऑल्सो शोज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों तरह का डेटा. और ये शो किया करते हैं बाय डिफरेंट सिंबल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेडिंग. शेडिंग भी हुई होती है इन मैप्स के ऊपर और डिफरेंट सिंबल्स से भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ thematic map. Dot map shows quantitative data by dots. Choropleth map shows quantitative and qualitative both type of data by using different colors and shades. Isopleth map shows quantitative data by using contour lines, and proportional symbol map shows qualitative and quantitative data by using symbols of different size and different color shades. And you can see these pictures on page number 82, 80, 81 and 82. All these types of maps are given in your book, page number 80, 81 and 82. Now it's time for graphs. What are graphs? Graphs are useful way to present the data and other information in visual format. How does they represent the data? They represent the data and information in visual format. हमारे पास बुक में जो ग्राफ्स गिवन है उसमें रिप्रेजेंट डेटा इन विजुअल फॉर्मेट. राइट. ओके. जो ग्राफ डिस्कस किए गए हैं बुक में उनमें सबसे पहले है लाइन ग्राफ. द सेकंड वन इज बार ग्राफ. द थर्ड वन इज pie graph, and the fourth one is compound graph. Right. All of you know that line graph is a graph that shows the data in the form of dots that are joined and make a line. This type of graph is called line graph. The second one is a bar graph. Bar graph usually shows the data in the form of percentages or in the form of bars. In your book there are different types of bar graph has been discussed. This is the simple bar graph. Right. If we talk about composite bar graph, तो composite bar graph में सिर्फ एक बार ग्राफ बनता है जिसमें डेटा को हम परसेंटेजेस की फॉर्म में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं. ये सिंपल बार ग्राफ है, ये composite बार ग्राफ है. इसके अलावा ग्रुप्ड बार ग्राफ भी हमारे पास होते हैं जिसमें हम बहुत सारा डेटा डिफरेंट कंट्रीज का एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस. दीज आर द कंपाउंड बार ग्राफ्स. एक और बार ग्राफ हमारे पास होता है जो कंपोजिट बार ग्राफ का डेटा ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट करता है, लाइक दिस.
इसे हम कहते हैं कंपोजिट ग्रुप बार ग्राफ. और एक हमारे पास पॉपुलेशन पायरामाइड होता है जो डेटा पायरामाइड की फॉर्म में शो करता है इस तरह से. सेंटर में एक लाइन होती है जो आपकी वाई एक्सिस को शो कर रही होती है. राइट, दीज आर द टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स एंड देन वी हैव अ पाई चार्ट. पाई चार्ट shows the data in the form of a circle that has been divided into different segments and collectively it is made up of an angle that is 360 angle. 360 के एंगल पे ये बनता है और डेटा इसमें 100% में डिवाइड होता है by dividing different circles. It means pie graph is a graph that represents the data in the form of percentages. Collectively it will show 100% data. And at last we have compound graph, and the compound graph is a graph that collectively combine the two graphs. Like if we combine the line graph and bar graph to show or to represent our data, then that graph will be called compound bar graph. This is a bar graph, and if the data is also shown in the form of a line, then this type of graph will be called compound graph. So these are the types of graphs that has been discussed in your book: line graph, bar graphs, different types of bar graphs, pie graph and compound graph. There is another topic of this chapter, that is advanced mapping and data collection. Okay, there are two different types of data collection techniques: active remote sensing technique and passive remote sensing technique. Active remote sensing techniques include radar and lasers. These active remotes, in this active remote sensing techniques we use the equipment that relies on that emits their own energy. ऐसे इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से खुद उनकी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज और इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज. ऑलराइट, जबकि पैसिव रिमोट सेंसिंग टेक्निक में जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एरियल फोटोग्राफी है जिसमें पिक्चर्स कलेक्ट की जाती हैं, और थर्मल इमेजिंग है जिसमें हम अगेन इंफ्रारेड रेज को इस्तेमाल करते हुए पिक्चर्स को क्लिक करते हैं. और यहाँ पर जो हम सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे होते हैं वो सनलाइट होती है. सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक्स. एंड एट लास्ट here we have modern mapping and route planning. In modern mapping and route planning we use two technologies: GIS, geographical information system, and GPS, geographical global positioning. So here we have two types of modern mapping technologies. The first one is GIS, geographical information system, and the second one is GPS, global positioning system. In GIS there are the layers of data that has been gathered in a computer based system, whereas GPS is an electronic device that been attached with some vehicles or important things to track them. उनको ट्रैक करने के लिए उसके साथ उसको अटैच कर दिया जाता है. And at last we can use both these devices, GPS and GIS system, for planning of roads, for planning of sea routes, and for planning of air routes. So here we have completed the review of unit number 7. अब जो आपको होम टास्क दिया गया था लास्ट वीडियो में, जिसमें आपको 4 यूनिट्स का जो है वो असेसमेंट दिया गया था, वो उस असेसमेंट की ब्लैंक्स मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रही हूँ. और इस वीडियो के लास्ट में जो आपको असेसमेंट नंबर 5 मिलेगा यूनिट नंबर 7 का, उसकी ब्लैंक्स भी मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रही हूँ, तो आप काइंडली उसको नोट कर लीजिएगा. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रिव्यू ऑफ हिस्ट्री. So students, these are the answers of the blanks that has been given in your assessment. In unit number 1, the answer of blank number 1 is Sri Lanka, blank number 2 is landlocked, blank number 3 is Kazakhstan, number 4 UAE, number 5 1260.1 US डॉलर. ये चेंज होती रहती है, बट आप ये वाला आंसर याद कीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो. Number 6 China, number 7 English, Kazakh, Russian, Arabic and Mandarin. English is the official language of Sri Lanka, Kazakh and Russian is the official language of Kazakhstan, Arabic is the official language of UAE, and Mandarin is the official language of China. Number 8 Sri Jayawardhan Ipora is the capital of Sri Lanka, Astana is the capital of Kazakhstan, Abu Dhabi is the capital of UAE, and Beijing is the capital of China. Unit number 2, the first answer of blank number 1 is 10%. इसकी ब्लैंक जो थी वो थी कि कितना परसेंट हमारी अर्थ कवर करती है ग्लेशियर. द ग्लेशियर कवर्स 10% ऑफ अवर अर्थ. इन पाकिस्तान देयर आर मोर देन 5000 ग्लेशियर्स. U-shaped sect and U-shaped valley sect, horn and arities are the landforms created by the glaciers. Deflation is a process in which the lowering of floor has been done.
erosional and depositional landforms, like they are formed by the wind. Sand dunes and sandbars are the depositional landform. Cliff, meander, channels and floodplains, these are the landforms which are both erosional and depositional, and alpine glaciers are the glaciers that are formed on the mountains. In unit number 3, there were 6 blanks that had been given in your assessment. 70% of our earth is covered with water. Pacific Ocean is the largest and Arctic Ocean is the smallest ocean of the world. Mariana Trench is the deepest trench of the world. The deep inlet of an ocean is called Gulf. The force that attracts the water and cause tides, this force is called gravitational pull of moon. And a sea that is completely landlocked is a Caspian Sea. Pakistan's export economy is 69, ranking is 69 in the world, and import economy world ranking is 54. There are 10 countries with which Pakistan is doing exporting tea. The blank was that Pakistan is the largest consumer of the tea, and world ranking में हम नंबर 8 पर आते हैं टी कंज्यूमिंग में. Cotton is the major top export of Pakistan. Fossil fuel is the top import of Pakistan. There are 8 countries which are the members of an organization that is South Asian Free Trade Area Organization, SAFTF. Quotas and tariff are cut or lower down in preferential trade agreements. Data that shows quality is called quantitative data. Quantitative data tells about quantity, qualitative data tells about quality, quantitative data tells about quantity. A map that shows the data in the form of dots, they are called dot maps. A choropleth map is a map that shows the data by using different colors and different shadings. A pie graph is a graph that shows the data or information in the form of percentage. Thermal imaging and aerial photography is a passive remote sensing technique, whereas LiDAR and laser techniques are the active remote sensing techniques. And in the last, there were 2 graphs given in your assessment. The first graph shows the line graph and the second graph shows the bar graph. Here we have completed the review of all the units that had been taught in second semester final term content. सबका असेसमेंट आपको दिया जा चुका है. असेसमेंट की ब्लैंक्स आपके सामने बोर्ड पर सॉल्व हुई हुई हैं. बाकी की जो आंसर्स हैं वो आपकी कॉपी और कंटेंट सॉल्यूशन में दिए हुए हैं. उसकी प्रिपरेशन आप वहीं से करेंगे. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिव्यू ऑफ हिस्ट्री. Let's start the review of unit number 1 in history. The struggle for the power on the subcontinent. सब कॉन्टिनेंट पर हर एक ने अपनी जो है वो पावर हासिल करने की या रूलिंग करने की कोशिश की. अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि ट्रेडिंग के लिए 4 डिफरेंट नेशंस आई थी सब कॉन्टिनेंट इंडिया में. डच, पोर्टुगीज, इसके अलावा फ्रेंच एंड और सबसे आखिर में जो लोग सब कॉन्टिनेंट इंडिया पे रूलिंग के लिए पहुंचे या ट्रेडिंग के लिए पहुंचे, दे वर द ब्रिटिश. राइट. जब ब्रिटिश इंडिया पहुंचे ट्रेडिंग के लिए तो उन्होंने बाकी 3 जो नेशंस जिसमें पोर्टुगीज थे, डच थे और फ्रेंच थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम कर रही थी वो एज अ ट्रेडर, उनको उन्होंने वहाँ से निकालने की कोशिश की. इनके दरमियान जंगें हुई. सबसे पहले इन 2 नेशंस ने अलायंस बनाया था जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच मिलिट्री थी. इन्होंने आपस में अलायंस बनाकर डच और पोर्टुगीज को इंडिया से निकाला और अब वहाँ पे कौन ट्रेडिंग कर रहा था, ब्रिटिश और फ्रेंच. और बाद में फिर ब्रिटिश और फ्रेंच जो थी नेशंस, इनकी आपस में फिर दोबारा जंगें हुई, जिसके बाद फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ख़त्म किया गया और उसे वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा और सब कॉन्टिनेंट इंडिया में रह गए ब्रिटिश, और जिन्होंने वहाँ पर बुनियाद रखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. ये बात हो रही है 16 और 17 सेंचुरी की बात है. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द स्ट्रगल फॉर द पावर ऑन द सब कॉन्टिनेंट. जो चैप्टर में स्टार्ट उन्होंने लिया है वो मुगल मराठा बैटल से स्टार्ट लिया है. जो मुगल मराठा बैटल्स थी वो स्टार्ट हुई थी 1681 में, जब आखिरी जो लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारे पास मुगल गुजरा है औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल्स आए हैं वो पॉलिटिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे या वो फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. दे वर डूइंग द पपेट रूलिंग. वो क्या कर रहे थे, पपेट रूलिंग कर रहे थे. जो औरंगजेब आलमगीर का दौर था 1681 का टाइम, वहाँ पर मुगल मराठास बैटल्स हुई. मराठा एम्पायर भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था इंडिया में जिसकी जंग हुई औरंगजेब आलमगीर के साथ. और औरंगजेब ने इनके साथ जंग क्यों की थी, कहीं कि ऐसा ना हो कि इनकी फोर्सेस हमला कर दें औरंगजेब आलमगीर की सल्तनत पर और फिर वहाँ पर उनका कब्जा कायम हो जाए. लिहाजा इन्होंने उनके हमला करने से पहले खुद हमला किया और उनके तमाम फोर्स को खाली करवा लिया. राइट. मुगल मराठा बैटल्स
के लास्ट में जो मुगल्स थे उनको फ़ायदा हुआ, वो जंग जीत गए थे। और डिफीट किसकी हुई थी? मराठास की डिफीट हुई थी। अच्छा, अपनी हार के बाद 1681 में ये जंगें शुरू हुई थी और 1689 में जाकर दोबारा से जो मराठास थे वो खड़े हुए, क्योंकि स्टार्ट में ये जंग हार गए थे, इनके तमाम फोर्ट्स खाली करवा लिए गए थे। 1681 से लेकर 1689 वो टाइम पीरियड था जिसमें औरंगजेब आलमगीर की फोर्सेस ने तमाम फोर्ट्स को खाली करवा लिया था। फिर 10 साल का अरसा लगा मराठास को दोबारा से खड़े होने में। 1689 के बाद 1698 में दोबारा से मराठा फोर्सेस ने हमला किया एक फोर्ट के ऊपर जिसका नाम था गिंजी फोर्ट, जो किसके एरिया में आ रहा था? औरंगजेब आलमगीर के जो है टेरिटरी में आता था। अब औरंगजेब आलमगीर ने फिर अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए इस फोर्ट को मराठा से जो है वो खाली करवा लिया। जब तक औरंगजेब आलमगीर जिंदा रहे तब तक तो सब कॉन्टिनेंट इंडिया पर जो मेजर रूलिंग थी वो मुस्लिम सल्तनत की थी, लेकिन इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ हुई है 1707 में। इसके बाद जो मराठास थे वो स्ट्रांग हो गए और फिर हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस एट अ प्लेस दैट वी कॉल्ड द पानीपत। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पर जो उस वक्त का जो रूलर था वो था शाह आलम। शाह आलम के साथ मराठा फोर्सेस की जंग हुई जिसमें शाह आलम ये जंग हार गए और इन्हें दिल्ली को खाली करना पड़ा। और वहाँ पर किन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली? मराठास ने अपनी हुकूमत कायम की। अच्छा, क्योंकि ये जो अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो हमारा पहला मुगल गुजरा जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। अच्छा, जो नहीं, बहादुर शाह जफर ही वॉज द लास्ट। जहीरुद्दीन was the first मुगल दैट केम फ्रॉम द अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से आए थे। अब क्योंकि ये बिलोंग करते थे अफगानिस्तान से, तो जो आखिरी औरंगजेब आलमगीर के मरने के बाद जब उसका बेटा रूलिंग में आया तो उसको सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान से ही एक और जो आर्म फोर्स का लीडर था जिसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। अच्छा, अहमद शाह दुर्रानी ने अपनी फोर्सेस के साथ दिल्ली के जो दरबार था जहाँ पर मराठास ने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी वहाँ हमला किया। और फिर इस जंग में कौन जीत गया था? इस जंग में अहमद शाह दुर्रानी जीत गए थे और मराठास को डिफीट हुई थी। अच्छा, इस हार का बदला लेने के लिए 1761 में फिर एक जंग हुई जिसे बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, जिसमें अफगान फोर्सेस को, जिसका लीडर था अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, उसको हार हुई थी और उसको दिल्ली को छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, इसके बाद सिख एम्पायर आया। सिख एम्पायर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद सिखों ने हमला किया पंजाब पर और पंजाब का जो एरिया था यहाँ लाहौर तक ये पहुंच गए। 1799 तक यहाँ पर मराठास को डिफीट हुई और फिर कौन आ गया? सिख आ गए। 1799 तक इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की। इसके बाद जो हुकूमत शुरू हुई है वो स्टार्ट हुई है ब्रिटिश की। 1849 तक उन्होंने 1849 में उन्होंने पूरे जो लाहौर और दिल्ली का एरिया था उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिश की बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिटिश इस दौरान सिर्फ क्या कर रहे थे? ट्रेडिंग पोर्ट्स कायम करने की कोशिशें कर रहे थे कि वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कंपनी वहाँ पर स्टार्ट करें और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रूलिंग की तरफ आएँ। अच्छा, डायरेक्ट रूलिंग वो कर नहीं रहे थे। वो क्या कर रहे थे? जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो शाह आलम और इसके बाद जितने भी मुगल्स आए हैं वो सब पपेट रूलिंग कर रहे थे, यानी उनको मेनली कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। रूलर तो लोगों को दिखाने के लिए वही होते थे, लेकिन उनके जितने भी फैसले होते थे वो ब्रिटिश किया करते थे। अब फाइनली 1849 के बाद जो है वो खुलकर सामने आए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में। 1857 की जो वॉर हुई है उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अबॉलिश कर दिया गया था और वहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट हो गया था क्राउन रूल, यानी क्वीन विक्टोरिया खुद जो है इंग्लैंड से सब कॉन्टिनेंट इंडिया आई और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 100 ईयर से रूलिंग के उसको भी ख़त्म किया और ब्रिटिश क्राउन रूल इंडिया में अप्लाई कर दिया गया। अच्छा जी, इसके बाद एक और टॉपिक डिस्कस किया इस चैप्टर में, सिग्निफिकेंट लीडर शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह वाज अ रिलीजियस पर्सनालिटी इन दैट टाइम पीरियड। अच्छा, औरंगजेब आलमगीर के बारे में एक चीज़ और डिस्कस की गई है कि उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फतवा आलमगीरी, जिसमें इस्लामिक लीगल कोड दिए गए थे जिसके मुताबिक एक मुसलमान जो है वो ज़िंदगी गुजार सकता है, उसको क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, शाह वलीउल्लाह का जो टाइम पीरियड था उस वक्त ये वही टाइम पीरियड था जब औरंगजेब आलमगीर मौजूद थे। शाह वलीउल्लाह ने जो तमाम सिचुएशन अनरेस्ट सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा मुसलमानों की बार बार हार होने का जो एक रीज़न सामने आ रहा है वो ये है कि वो इस्लामिक टीचिंग से दूर होगा, लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम के करीब लाने की कोशिशें की। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी अहादीस की जो है वो ट्रांसलेशन की, कुरान का तर्जुमा, अहादीस की ना सिर्फ ट्रांसलेशन की बल्कि उनकी तफसीर भी लिखी, साथ के साथ उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज उस वक्त सब कॉन्टिनेंट इंडिया की मेन लैंग्वेज थी। ये उनका रोल है
फॉर द इस्लाम एंड फॉर द पीपल फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लीडर है जो उस टाइम के थे, हैदर अली। हैदर अली वॉज द he was the ruler of मैसूर। मैसूर was the capital of दक्कन प्रोविंस, ठीक है, हैदराबाद दक्कन जिससे आप कहते हैं, उस वक्त उसका कैपिटल था मैसूर। अच्छा, हैदर अली के जो क्लैशेस थे वो ब्रिटिश फोर्सेस के साथ चल रहे थे, यानी ब्रिटिश के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, वो अपने एरिया में ब्रिटिश को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे या वहाँ पर उनकी हुकूमत कायम नहीं होने देना चाह रहे थे, लिहाजा इन्होंने अलायंस बनाया फ्रेंच मिलिट्री के साथ, जो कि किसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिश के साथ। पहली जंग हुई, हैदर अली वो जंग जीत गए। जो ब्रिटिश थे उनको मराठास सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मराठास जो थे वो मुस्लिम्स के दुश्मन थे, और फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे हैदर अली को, क्योंकि जो फ्रेंच थे उनकी जंग हो रही थी किसके साथ, पहले ही ब्रिटिश के साथ, लिहाजा दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप हैदर अली का ग्रुप था, जिसमें हैदर अली को नवाब जो थे हैदराबाद दक्कन के मैसूर के, वो भी सपोर्ट कर रहे थे, निज़ाम्स भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच मिलिट्री उनको सपोर्ट कर रही थी, और हैदर अली की फोर्सेस खुद थी। जबकि दूसरे ग्रुप में ब्रिटिश थे और उनके साथ मराठास मौजूद थे। पहली जंग जो हुई इन दो ग्रुप्स में, उसको हैदर अली जीत गए, लेकिन जब ब्रिटिश ने जब वो जंग जीत गए तो उन्होंने एक मुआहदा, एक ट्रीटी साइन की, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ प्रोटेक्शन, जिसके मुताबिक अब ब्रिटिश आर्मी मराठास को सपोर्ट नहीं करेगी। अगर हैदर अली की जंग मराठास के साथ होती है तो ब्रिटिश हैदर अली को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब जंग मराठास के साथ हुई तो ब्रिटिश ने हैदर अली को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, अगेन मराठास को सपोर्ट किया और मुआहदा तोड़ दिया। लिहाजा इस गद्दारी की वजह से, इस बिट्रेल की वजह से क्या हुआ, हैदर अली वो जंग हार गए। अब हैदर अली जब ये जंग लड़ रहे थे तो उनके साथ उनका बेटा, जिसे हम टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल दिया गया, और टीपू सुल्तान, उन्होंने भी अपने वालिद के साथ, फादर के साथ ये जंग लड़ी, लेकिन ये जंग वो हार गए। इस हार का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान ने एक और जंग का ऐलान किया। उस जंग के ऐलान से पहले उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपनी फोर्सेस भेजें ताकि हम ब्रिटिश से इस हार का बदला ले सकें। लिहाजा ब्रिटिश फ्रेंच मिलिट्री सपोर्ट करने के लिए आई, लेकिन जब जंग हुई तो टीपू सुल्तान दोबारा ये जंग हार गया। अब जब टीपू सुल्तान तीसरी जंग हारे हैं तो टीपू सुल्तान ने भी एक ट्रीटी साइन की, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ श्रिंगमपट्टम। ये साइन की गई है 1792 में, जिसके मुताबिक टीपू सुल्तान को अपने दो बेटे और अपना आधे से ज्यादा एरिया जो उनकी टेरिटरी में आता था वो ब्रिटिश को दे देना था। अच्छा, फिर दोबारा उन्होंने इस जंग के बाद जिसमें इन्होंने ट्रीटी ऑफ श्रिंगमपट्टम साइन किया था, इसका बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान ने फिर एक जंग की, और उस जंग में भी टीपू सुल्तान हार गए, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक ब्रिटिश फोर्सेस का मुकाबला किया। इस जंग में भी जो है फ्रेंच मिलिट्री ने उन्हें सपोर्ट किया था। फ्रेंच मिलिट्री का उस वक्त जो लीडर था, उस सिचुएशन को देखते हुए टीपू सुल्तान को ये मशवरा दिया कि आप ये जगह छोड़कर सेफली निकल जाएं, हम आपको एक सेफ रास्ता फराहम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार किया। एंड ही सेड बेटर टू लिव वन डे एज अ टाइगर दैन 1000 ईयर्स ऑफ अ शीप। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और जब उनकी लाश मिली है जंग की मैदान से, तो उनके हाथ में एक तलवार मौजूद थी, जो इस चीज़ को सिंबलाइज करती है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक ये जंग लड़ी। यहाँ आकर आपका यूनिट नंबर 1 का रिव्यू कंप्लीट हुआ। नाउ इट्स टाइम फॉर यूनिट नंबर 2 का रिव्यू कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 3 का रिव्यू। यूनिट नंबर 3, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूनिट नंबर 3, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ ब्रिटेन वर वेरी डिफरेंट बिफोर 1750। 1750 से पहले इंग्लैंड की जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते थे, देही इलाकों में रहते थे, कंट्री साइड पर रहते थे, विलेजेस और स्मॉल टाउन्स में। मेजर जो काम वो किया करते थे उसमें वो ज़्यादातर लोग वहाँ के लैंड ओनर्स थे, जो अपनी ज़मीनों को किराए पर दिया करते थे कि लोग उसको रेंट पर ले और वहाँ पर फार्मिंग करें। जिस तरह से पाकिस्तान की मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, अगर हम 1750 से पहले 1750 से पहले की बात करें तो इंग्लैंड की भी मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी जिसे आप कहते हैं वो एग्रीकल्चरल बेस थी। बाद में वहाँ पर 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ। ज़्यादातर लोग 1750 से पहले या 1750 तक 1750 तक क्या काम कर रहे थे, फार्मिंग का काम करते थे, या इसके अलावा पोर्ट्रे बना लिया करते थे, मेटल गुड्स का काम करते थे, या छोटी छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी जो उनकी होम बेस्ड इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। तमाम काम ऑल वर्क वाज डन मैनुअली, हाथों से बनी हुई, हाथ से चलाने वाली मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता था। बट आफ्टर 1750 और वी कैन से दैट इन 1781
1781 में जेम्स वॉट ने एक इन्वेंशन की जिसका नाम है रोटरी स्टीम इंजन। क्या बनाया इसने? रोटरी स्टीम इंजन, जिसके बाद इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। पहली दफा जब ये इंजन बनाया गया था तो इसको सिर्फ वाटर पंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था इन कोल माइंस, राइट। बट इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा, इसे कॉटन मिल्स में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, स्टील वर्क फैक्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था वो होता था कोल, और कोल जो है वो नेचुरली इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, इसलिए उन्हें उसके जो, अगर आप कहा जाए नेचुरल रिसोर्स है, जो फॉसिल फ्यूल है, वो उनको इजीली अवेलेबल था, तो वो स्टीम इंजन को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एडवांसमेंट आती गई, मज़ीद सोचा गया कि अब अगर एक स्टीम इंजन एक स्टील फैक्ट्री में या एक जो है वो कॉटन मिल में काम कर रहा है, तो मज़ीद हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल या इसको एडवांस करके और कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर ख्याल आया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। जो चीज़ें फैक्ट्रीज में तैयार हो रही हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लगता था, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक लॉन्ग टाइम लगता था। अब उस टाइम को शॉर्ट करने के लिए, एक्सपेंस को कम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को जो खर्चा आ रहा था उसको कम करने के लिए सोचा जाने लगा कि मजीद क्या किया जा सकता है। तो इसी स्टीम इंजन को एडवांस किया गया और उसे बना दिया गया लोकोमोटिव, स्टीम पावर्ड इंजन, और इसे क्या कहा गया? लोकोमोटिव। इसको बनाने वाले दो लोग थे, जॉर्ज स्टीफेंसन, उनका बेटा रॉबर्ट। इन दोनों ने मिलकर एक इसी इंजन की एडवांस टाइप बनाई जिसे कहा गया लोकोमोटिव, जो कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था? रेलवेज में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा था इसमें वो वही था, क्या चीज़? कोल, जो कि वहाँ पर नेचुरली बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। और इन तमाम, अच्छा, जब रेलवेज बनाए गए तो रेलवेज को बनाने के लिए आयरन, लोहे का इस्तेमाल किया गया, और आयरन भी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स के तौर पर बहुत ज़्यादा मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता रेलवेज बनाए गए, रेलवे ट्रैक्स बनाए गए। रेलवे ट्रैक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक पावर पंपिंग मशीन से के लिए स्टीम इंजन पहले इस्तेमाल किया गया, फिर उसी स्टीम इंजन को इस्तेमाल किया जाने लगा इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज से वो लोकोमोटिव्स में आया, पहले रेलवेज बनी और फिर कार्गो शिप्स बनाए गए। इस तरह से ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। 18th सेंचुरी के बारे में कहा जाता है, इट इज़ द टाइम ऑफ, और इट इज़ एन एज ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेंशन इन इंग्लैंड एंड यूरोप। इंग्लैंड और यूरोप में ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से आ रहा था और बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हो रही थी। अच्छा, ब्रिटेन की एक ट्रेडिशन है कि उनकी अपनी ब्रिटेन रॉयल नेवी होती है। अच्छा, ये ब्रिटेन रॉयल नेवी सी ट्रेडिंग का काम करवाती थी। अब यहाँ पर जो कॉलोनियल कंट्रीज हुआ करती थी, यानी ब्रिटेन का जिन कंट्रीज के ऊपर हुकूमत इन्होंने ज़बरदस्ती कायम की हुई थी, वहाँ से ही क्या करते थे? स्लेव ट्रेडर्स लेते थे, गुलाम खरीदा करते थे और फिर अपनी मर्जी की जगहों पर इनको ले जाया जाता था और वहाँ पर इनसे ट्रेडिंग करवाई जाती थी। यहाँ इनके दो पोर्ट्स थे, लिवरपूल एंड ब्रिस्टल, जहाँ पर ये स्लेव ट्रेडर्स से शुगर केन, कॉटन और टोबैको की क्रॉप जो है वो उसकी प्लांटेशन का काम करवाते थे। अच्छा, एग्रीकल्चर तो इनकी इंडस्ट्री थी ही, साथ के साथ इन्होंने क्या किया? एडवांसमेंट लाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया। अब वो लोग जो पहले रूरल एरियाज में रहते थे वो सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि उनको ज़्यादा इनकम किससे मिल रही थी? फैक्ट्रीज में काम करके वो ज़्यादा अर्निंग कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू वर्क इन अ विलेज और एज़ कम्पेयर टू वर्क इन अ फार्मिंग में उन्हें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिला था, प्लस उन्हें जो ज़मीन होती थी फार्मिंग के लिए वो भी रेंट पर लेनी पड़ती थी। अच्छा, जब नए फैक्ट्रीज में लोग ज़्यादा काम करने लगे तो फिर फैक्ट्रीज के साथ साथ उनके रहने के लिए चीप रेंट हाउसेज बनाए गए जहाँ पर वो वर्कर्स रहा करते थे। फिर अगर हम बात करें कि वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, तो इंग्लैंड में जो मेन इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन जो इंग्लैंड का क्लाइमेट है वहाँ पर रॉ कॉटन या कॉटन क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो नहीं करती, लिहाजा जो ब्रिटेन्स थे वो नॉर्थ अमेरिका और इंडिया से रॉ कॉटन को परचेज किया करते थे और फिर उसको अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करके उससे कॉटन क्लोथ्स तैयार किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटेन ने किसको कॉलोनियल कंट्री बनाया हुआ था, सब कॉन्टिनेंट इंडिया। तो सब कॉन्टिनेंट इंडिया में जो इनके ऑफिसर्स जाया करते थे तो वहाँ पर वो कॉटन क्लोथ्स को इस्तेमाल करते थे। अब वहाँ के जो कॉटन क्लोथ्स थे वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड की थी जो थी वो काम करना उसने कम कर दिया। बजाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो कपड़ा बनाती, वो क्या करते थे? वो कॉटन क्लोथ्स डायरेक्ट सब कॉन्टिनेंट इंडिया से इम्पोर्ट करवा लेते थे थ्रू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, जब ये सब होने लगा तो वहाँ पर जो वुलन इंडस्ट्री थी वो डाउन होने लगी। जब तक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड में नहीं बनाई गई थी उस वक्त
वक्त तक वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो इंग्लैंड में बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अब जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम बढ़ गया तो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इनकम कम हुई, लिहाजा उन्होंने कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद एक लॉ बना दिया गया जिसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया गया। ये बात हो रही है 1721 की। फिर कुछ टाइम के बाद इस बैन को खत्म किया गया और अब इंग्लैंड अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ रॉ कॉटन मंगवाता था। कॉटन टेक्सटाइल जो कॉटन क्लोथ्स थे वो खुद तैयार कर रहा था। इस तरह से अच्छा, जब इन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट की तो इंडिया में इन्होंने वो जो छोटे छोटे लूम्स थे जहां पर घरों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री छोटी छोटी इंडस्ट्री से जहां कपड़े तैयार किए जा रहे थे उसको इन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। कहां पर? सब कॉन्टिनेंट इंडिया में। ये इनकी एक क्या कहा जाए ट्रिक थी जिससे इन्होंने इंडिया में सब कॉन्टिनेंट इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म किया और इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट किया। पहले इंडिया वो कंट्री थी इनकी जहां से ये रॉ कॉटन या कॉटन क्लोथ इंपोर्ट करते थे, अब ये वहां पर कॉटन क्लोथ को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। पहले इंग्लैंड किससे कॉटन क्लोथ खरीद रहा था? इंडिया से। अब इंडिया को इंग्लैंड से कॉटन क्लोथ खरीदना पड़ता था, उनके पास सिर्फ रॉ कॉटन होती थी जो वो इंग्लैंड को एक्सपोर्ट कर देते थे। इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड में तो बहुत कामयाबी से चली, लेकिन इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया। अच्छा, जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो उसके साथ साथ एक और इंडस्ट्री बहुत बूस्ट कर गई, वो थी पोर्ट्रे इंडस्ट्री, मट्टी के बर्तन बनाने की इंडस्ट्री। ये स्टार्ट हुई थी स्टॉक ऑन टैरेंट प्लेस से। यहाँ पे अच्छा, जो चीज़ इस्तेमाल की जाती थी इसको बनाने के लिए, पोर्ट्रेस को बनाने के लिए उसमें क्ले है, लेड है, सॉल्ट, फाइन सैंड, कोल फॉर फायरिंग क्लिंस, ये तमाम चीज़ें नेचुरली इंग्लैंड में मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता पोर्ट्रे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मशहूर होती गई। बाय 1740 पोर्ट्रे वाज द मेन इंडस्ट्री ऑफ द स्टॉक ऑन टैरेंट विद अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड पोर्टर्स। अब स्किल्ड पोर्टर्स वो लोग पोर्टर्स लोगों को कहा जाता है जो है मिट्टी के बर्तन या इस तरह की जो है सजावट की चीज़ें, ऑर्नामेंटल थिंग्स को बनाते हैं। उस वक्त का जो सबसे फेमस पोर्टर था वो था जोसाइश वेडवर्क, जिसने लंदन में अपनी पोर्ट्रे इंडस्ट्री स्टार्ट की, अपना सेल्स रूम स्टार्ट किया। अच्छा जी, उस वक्त के जो न्यूली वेल्थ या नए नए जो वेल्दियर पीपल होते थे वो अपनी वेल्थ को, अपनी शान और शौकत को शो करने के लिए क्या करते थे? पोर्ट्रे सेल्स रूम्स का विजिट किया करते थे। ब्रिटेन रॉयल फैमिली का विजिट किया करते थे जहाँ पर वो पोर्टर्स की बनाई हुई चीज़ों को देखते थे। और एक और चीज़ थी उस वक्त, टी और कॉफ़ी, जो कि उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, चाइना से मंगवाई जाती थी। तो इन दो चीज़ों को शो करते थे वो, टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल और पोर्ट्रे इंडस्ट्री या पोर्ट्रे सेल्स रूम या रॉयल फैमिली जहाँ पर पोर्ट्रेस को डिस्प्ले किया जाता था वहाँ का विजिट किया करते थे अपनी वेल्थ को शो करने के लिए। ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ ही रहा था, इसका क्या बेनिफिट हुआ इंडिया को? इंडिया को सिर्फ एक चीज़ का बेनिफिट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से, कि जब रेलवे ट्रैक्स बनाए गए तो वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से लेकर इंडिया तक के बनाए गए, फ्रॉम बॉम्बे टू थेन। इंग्लैंड में एक सिटी है थेन, थेन से लेके बॉम्बे तक का एक रेलवे ट्रैक बनाया गया जिसके ज़रिए इंडिया के लोग जो है वो इंग्लैंड जा सकते थे और इंग्लैंड के लोग जो है वो इंडिया आ सकते थे। स्टार्ट में तो इन्हें ये रेलवे सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई, बाद में लोकल ट्रेन चलाए गए जिसको इंडियंस इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इंग्लैंड में जो हुआ उसका फ़ायदा सब कॉन्टिनेंट इंडिया के लोगों को भी हुआ। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चरल कामों के लिए डैम्स बनाकर दिए और जो इरिगेशन कैनाल्स सिस्टम जो है वो इंडिया को बनाकर दिया। नाउ द रिव्यू ऑफ यूनिट नंबर 3, द नेम ऑफ यूनिट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ बीन कंप्लीटेड हियर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कंप्लीट हो गया? Okay, we will discuss unit number 4 in the last video. We will discuss unit 4, unit 8 and unit number 10 in the last video. Here we have completed the review of unit number 3 and unit number 2. अब आप अपने assessments को note कर लीजिए। डन, रीडेबल है, यहाँ से देखते हैं आ रहा है समझ, इतना तो आएगा, मेरा तो आ रहा था, मैंने सारे देखे, रीडेबल है।
हो गया, ये भी ले लिया, देख लेना एक दफा. Students, so here we have completed the review of unit number 2 and 3 in history portion. Now what's your homework? In your homework you will solve the assessment number 5 of unit number 7 in geography, and also you will solve the assessment number 6, assessment number 7 from unit number 2 and 3 in history. We will meet in the last video. Till then, take care of yourself, solve your assessment. Allah Hafiz.